Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to India's largest e-learning platform, Unacademy. My name is Samrat Sir Mishra and you are watching Unacademy OPSC. Yesterday we started discussion on Article 20, 21 and 22 of the Indian Constitution. So today I will discuss from Article 23 onwards. Let's first discuss Article 23. Article 23 it is related to prohibition of traffic in case of human beings and forced labor. Human beings trafficking and forced labor को prohibit करछि and it is a fundamental right. या पूर्वर मु fundamental right ऊपर दुटा लाइन कहबी कि that is fundamental rights are not absolute, they are qualified. First point you need to remember, and you don't need to go through the process of appeal. It means from the lower court to the higher court, high court, then Supreme Court. Directly we can approach the high court or the Supreme Court. By virtue of Article 32 you can approach the Supreme Court. By virtue of Article 226 of the Indian Constitution you can approach the high court. So these are the basic things related to fundamental rights, and fundamental rights are there against the state not for their arbitrary action. So माने कोनोसी arbitrary action नहीं परिवेनी, both executive and the legislature against the citizen. ये कारण पाई citizen मानकर rights को protect करिया पाई Indian Constitution of Part 3 रे fundamental rights discuss करा जायछि. So coming to Article 23 it prohibits traffic in the human beings as well as the forced labor. Dita jinsa अछि एठी हमको बुझिबा पड़ो. First traffic in the human beings and the second is forced labor. Let's understand traffic. Traffic means selling and buying of human beings like other goods. Men, women बा children मानको आमे मार्केट रे जेमति other goods को किना बिका करा जाय, जदि सेही उपाय रे किना बिका करा जाय ताहा को ट्रैफिकिंग बोली कहा जाय. या व्यतीत ट्रैफिकिंग करिया पछरे गोटे ऑब्जेक्टिव थाए सबले. The basic objective is to involve them in some immoral activities. So manku kichi immoral activity jemti women manku they can be involved in the prostitution. Se manku forcefully prostitution involve kara jai pare. Children emanku forcefully involve kara jai pare like drugs trafficking, drugs transportation pai, arms and ammunition transportation pai ba alga kichi immoral activity pai ba देवदासी रा प्रथा समस्त सुनिथिबे जोठी हमरो मंदिर मानकर देवदास मानक नियुक्ति मिलुथला एवं से माने many times their rights were violated by the trustee or the board members of the temple management committee सेमानक द्वारा. then slavery. तो ये चारिटा प्रकार जिंसो को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोली कहउछन्ती बा एथि पई आकु इंप्लीमेंट करिया पई गवर्नमेंट आनिथिला इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इन 1956. So this thing is related to trafficking. Next देखिबा हमें बेगार कोन, because it prohibits human trafficking as well as forced labor. Beggar means compulsory work without any remuneration. ताकू किछि टंका न देकी जदि कोनस लोक को हम किछि काम करूछंती ताले ताकू बेगार बा फोर्सफुल लेबर बोली हमें कहिबा. बेसिकली पूर्वरु ई फोर्स्ड लेबर जो कांसेप्ट देखुछंती ये फोर्स्ड लेबर कोंतु बा बॉन्डेड लेबर कोंतु एटा पूर्वरु थिला जेतोले जमींदार माने थिले लैंडलॉर्ड माने थिले से माने तांको जमीन रे लोक मान को काम करूथिले एंड इन रिटर्न से मान को कोनस प्रकार रेमुनरेशन प्रोवाइड करनथिले. सो एटी फोर्स रो मीनिंग केवल फिजिकल बा लीगल फोर्स नु जण को बाध्य करबा हमें कि हम पाखरे काम करिवो पड़ता को टंका दबानी यार अर्थ नुहे. रादर फोर्स रो अर्थ मध्य हमें एम्ति गोटे सिचुएशन क्रिएट करैबा बा कंपल्सन क्रिएट करैबा बा गोटे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस एम्ति क्रिएट करैबा जोथरे गोटे लोक बाध्य होई कि कम टंका रे काम करिवो. 23 पढ़ला बेला हमें साधारणतः भाबुथबा कि बेगार मीन्स फोर्स्ड लेबर. हमें फोर्सफुली जण को काम करबा हम पाखरे बट रेमुनरेशन दबानी बा किछि टंका दबानी ताको कथा से नुहे. या सहित एमिति भी हे पारे हमें गोटे एमिति इकोनॉमिक सिचुएशन डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट करबा जोथरे गोटे लोक बाध्य होबा हम पाखरे आसी काम करिया पई. मानि नियंतु लैंडलॉर्ड अछि एंड इन द विलेज there are many workers, बहुत वर्कर अछंती. तो समस्त आसले लैंडलॉर्ड र जमी रे काम करिया पई. वर्तमान लैंडलॉर्ड कोन करिवो ना he will try to exploit the situation. से सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करी टोटल अधिक लोक थिबा कारणरु बा लेबर सप्लाई अधिक थिबा कारणरु से लेबर प्राइस बा लेबर वेज को कम कर दो एंड ऑटोमेटिकली दोस लेबर्स दे विल बी फोर्स्ड टू वर्क at lower wages कम टंका रे से माने काम करिवे. तो ये भी एठी बेगर अंडर रे आसुची. ओके
23 सहित गोटे एक्सेप्शन अच्छी एक्सेप्शन की जदि जो माने आर्म्ड फोर्स रे अछंती पुलिस फोर्स रे अछंती बा पब्लिक सर्विस रे अछंती यांको गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बा नेशन रा यूनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी पाई कोनसी जगह को पठाउची बा फोर्सफुली जदि मान को जॉब्स सेमानकर टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी जदि मान को कोनसी ट्रांसफर करा जाउथबा स्थान परिवर्तन करा जाउची ताली ये ट्रैफिकिंग अंडर रे आसीबो नाही. So this is all about Article 23. Now let's discuss Article 24 of the Indian Constitution. Article 24 basically it is related to the children because today's child is tomorrow's future. For that purpose ये कहूची कि below the age of 14 14 वर्ष जतले कम हेतिबो कोनोसी लोक कोनोसी पिला को बा चिल्ड्रन को कोनोसी हाजार्डस जगह रे हाजार्डस मींस जेमति कि हमको हाजार्डस फैक्ट्री हेगला जेमति देखतो एक्सप्लोसिव बाण कारखाना सब हेगला शिवकाशी रे जोटा अधिक देखा जाए माइनिंग हेगला बा किछ अदर हाजार्डस एक्टिविटी हेगला ऑफ द सेम स्केल और सेम एक्सटेंट से जगह रे हमें मन को इन्वॉल्व कराई परिबा नाही. ये हला प्रथम कथा. द नेक्स्ट इज याकू इंप्लीमेंट करिया पई हम पाकु आसिला गवर्नमेंट हैंडला द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रे. ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड इंपोर्टेंट लॉ इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. यहाँ व्यतीत जदि हम देखिबा then there are certain other laws as well. The Employment of Children Act 1938, then Factories Act 1948, Mines Act 1952, Merchant Shipping Act 1958, Plantation Labor Act 1951, Motor Transport Workers Act 1951. तो ए भलिया अनेक एक्ट अछि हम पाखरे अनेक लॉ अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखरे जे बेसिकली चिल्ड्रन मानकर एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करूची इन हाजार्डस फैक्ट्रीज. सो यहाँ पर 1996 रे सुप्रीम कोर्ट गोटे लैंडमार्क जजमेंट देले कि जति गोटे फंड क्रिएट हबो जो फंड रो नाम रहबो कि चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड. चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड ये फंड रे प्रत्येक एम्प्लॉयर जे 14 वर्ष कम पिला को नेकी काम करौथिबो देन द एम्प्लॉयर हैज टू गिव द फाइन ऑफ 20,000 रुपीस पर चिल्ड्रन. जेते लोक जेते पिला को नै से काम करैथिबो पर पिला 20,000 रुपीस तक फाइन देबा को पड़िबो एंड ये फाइन जीवो चाइल्ड डेवलपमेंट फंड को. या व्यतीत जदि हम देखिबा ये जो फंड अछि ये फंड यूज कोन पई हबो एथरे जो फंड अछि वो टंका रेज हबो दैट विल बी यूज्ड फॉर द एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन हेल्थ न्यूट्रिशन और एजुकेशन फैक्टर रे आपण यूटिलाइज करि परिबा. या सहित 2006 रे इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट बैन्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द डोमेस्टिक सर्विस माने डोमेस्टिक सर्वेंट बा वर्कशॉप रे बिजनेस हॉप रे देखुतिबे ढाबा मान करे रेस्टोरेंट मान करे दुकान मान करे जो पिला माने छोटो पिला माने काम करंती 2006 रे गवर्नमेंट आपु ए पिला मान करे एम्प्लॉयमेंट को बैन करेला जो मान करे 14 वर्ष रु कम हेछु. तो ए कारण पई आसिला हम पाकु गोटे लॉ आनिला 2016 रे गवर्नमेंट जहर ना होछि द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट. ये चाइल्ड लेबर पूर्वर जो लॉ थिला हम पाखरे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ये ताको अमेंड कला एंड अमेंड कला परे आर ना रखला कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. This is all about Article 24 and how protection is being provided to the children by the Indian Constitution. यहाँ पर हमें डिस्कस कर ले तापर न्यू आर्टिकल डिस्कस करियो आर्टिकल 25, 26, 27, 28. This is related to right to freedom of religion. Right to freedom of religion. तो हम गोटे पर गोटे डिस्कस करिया वर्तमान आर्टिकल 25. Article 25 of the Indian Constitution. So 25 is related to freedom of conscience, free profession, practice and propagation of any religion. So it is a keyword achi. Let's understand those keywords. The first is the freedom of conscience. Freedom of conscience रो meaning होची कि जनकर inner view कौन आसुची और individual view कौन आसुची बा जनकर mentality कौन अछि towards the government. Towards reaching at the God. माने भगवान को पाइया पई हम पाखरे हमर इनर फीलिंग्स कोन अछि ताको हमें कॉन्साइंस बोली कहंती. सेमते प्रोफेस कहले कोन बुझंती ना निजर रिलीजियस बिलीफ को ओपनली डिक्लेयर करबा को प्रोफेस बोली कहआ जाय. सो एक केस रे कहूची कि एटी रिलीजियस बिलीफ माने को गोटे लोक ओपनली तार रिलीजियस बिलीफ जहा अछि से ताको ओपनली एक्सप्रेस करि पारि. देन राइट टू प्रैक्टिस रो अर्थ होची परफॉर्मिंग रिलीजियस वर्शिप्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज, beliefs and ideas
निजे निजर रिचुअल्स जहाँ भावुं आमको लगुच कि नाई एमती ओसावार व्रत कर आवश्यकता रही एमती नमाज पढ़वार आवश्यकता रही ईद रे यही रिचुअल्स को मानवार अच्छी तो ताको हम राइट टू प्रैक्टिस कहले एंड प्रैक्टिसिंग दोज रिलीजियस रिचुअल्स कम्स अंडर द ambit of article 25 of the Indian Constitution. The next is right to propagate. Propagate ର meaning होची transmission बा dissemination of one's own idea हम निजर religious belief को disseminate करिबा बा अन्य मान को पाखु सेटा ट्रांसमिट करिबा को कहा जाए right to propagate. बट ए जगह रे ध्यान देबे राइट टू प्रोपागेट डजंट इंक्लूड की फोर्सफुल कन्वर्जन जने हिंदू को हमें फोर्सफुली मुस्लिम कन्वर्ट करिबा गोटे मुस्लिम को हमें फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करिबा बा गोटे क्रिश्चियन को हमें फोर्सफुली सिख को कन्वर्ट करिबा दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड बा ये राइट टू प्रोपागेट अंडर रे आसु नाही सो दिस वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सहित किसी एक्सेप्शन मध्य लागि रहिछि जेमति कि यदि पब्लिक हेल्थ ग्राउंड रे बा इकोनॉमिक ग्राउंड रे फाइनेंशियल ग्राउंड रे कोनोसी यदि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थाए देन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड इन दिस केस एंड दिस राइट इज नॉट completely absolute whenever the state want it can put some reasonable restriction upon that हमें कहबा कि रथ यात्रा को प्रैक्टिस करबा से हम हिंदू रिलीजन भितरे बा हम रिचुअल भितरे आसुची एंड दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड बट इन 2020 इट वाज बैंड रथ यात्रा को प्रैक्टिस करा जाय पालानी बा जेमति क्राउड गैदरिंग हुए लोक मान जेमति गैदर करंती ये गैदरिंग बंद करा दैथिला बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोन पय करा दैथिला ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ सो पब्लिक हेल्थ ग्राउंड रे 25 आर्टिकल ऊपर इट मींस स्पेशली अपन राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट अ पर्टिकुलर रिलीजन ऊपर सरकार बा स्टेट एठी रेस्ट्रिक्शन लगै पारिबे सो दिस इज द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट हम डिस्कस करबा आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 डिस्कसेस अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ये कहूचे प्रत्येक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मानकर संपूर्ण अधिकार रही निज रिलीजियस रिलेटेड निज रिलीजन रिलेटेड कौन चैरिटेबल ट्रस्ट बा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करबा पई या सहित से माने निजर अफेयर्स रिलेटेड टू द रिलीजन बा रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करिवार संपूर्ण अधिकार समान को पाकर मध्ये रहिछि ये आर्टिकल 26 द्वारा समान को प्रोवाइड करा जायछि द नेक्स्ट इज जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल कंस्ट्रक्शन हैला बा एस्टैब्लिशमेंट हैला एठी से माने निजर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी रखि पारिबे मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से ऑर्गेनाइजेशन माने रखि पारिबे देन जो प्रॉपर्टी रखिबे दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ not कि हमें रिलीजियस प्रैक्टिस करूछंदी गोटे प्रॉपर्टी मंदिर नारे गोटे प्रॉपर्टी अछि एंड वी आर डूइंग सम इलीगल एक्टिविटीज इन दैट प्रॉपर्टी ऑल दोस थिंग्स आर नॉट अलाउड बिकॉज़ जहां भी रखि परिबे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एथिरे कोनोसी मना नाही बा ये संपूर्ण अधिकार दिया जाय छै एज अ फंडामेंटल राइट बट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ ये लॉ बाहरे हे परिबोनी ठीक अछि सो आर्टिकल 25 और 26 भीतर हमें कोन डिफरेंस देखले आर्टिकल 25 गारंटीज दिस रिलीजियस राइट्स टू द इंडिविजुअल को दोछि एंड आर्टिकल 26 एटी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बा इंस्टीट्यूशंस मानको ये राइट्स दोछि दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 25 एंड 26 अगेन आई रिपीट कि आर्टिकल 26 रे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागि परिबो ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ ए बेसिस ऊपर या पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागि परिबो ठीक अछि आई होप यू आर क्लियर विथ आर्टिकल 26 नेक्स्ट मैं देखिबा 26 रे जो हम देखिले कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मानकर डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट देले सुप्रीम कोर्ट कहले कि जदि किछि कंडीशन सैटिस्फाई करे ताहाले हमें से ऑर्गेनाइजेशन को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बोली कहबा प्रथम इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सेम सेट ऑफ बिलीफ और सेम सेट ऑफ डॉक्ट्रिन यार मीनिंग होची कि जो माने यार मेंबर थिबे से मेंबर मानकर बिलीफ जदि हम देखिबा रिलीजियस बिलीफ स्पेशली ये सेम हेतिबो डिफरेंट रिलीजियस बा डिफरेंट फ्रैगमेंटेड रिलीजियस एक्टिविटी को ये शो करन थिबा दरकार प्रथम द्वितीय एमानकर गोटे कॉमन ऑर्गेनाइजेशन थिबा दरकार हमें कहबा हिंदू धर्म पय हमें गोटे चैरिटेबल माने गोटे हिंदू धर्म अंडर रे हमें गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएट करबा जोथरे समन्वयता नथिबो बा होमोजेनिटी नथिबो माने एटी जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन नथाय कि या भीतर विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशन थबो से जगह रे दैट इज नॉट अलाउड देन याको गोटे डिस्टिंक्टिव नेम यार गोटे पर्टिकुलर नेम जोटा रिलीजन सहित इन्वॉल्व होई पारे बा न होई पारे ए बेसिस रे तार गोटे नाम रहबा दरकार जहा द्वारा हमें से पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन को बोली ताको मानिबा तो सुप्रीम कोर्ट एही परिप्रेक्षी रे कहितले कि रामकृष्ण मिशन एंड आनंद हमर आनंद मार्ग दे आर रिलीजियस डिनोमिनेशंस
रिलीजियस डिनोमिनेशंस किंतु अरविंद सोसाइटी गोटे रिलीजियस डिनोमिनेशन नुहे प्रथमतः एटी कहीं कुआ गला ना गोटे देखंतु रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग दे आर इन्वॉल्व टू हिंदुइज्म बा हिंदुइज्म रो जो हमर प्रैक्टिस अछि प्रोफेस प्रोपागेटिंग द रिलीजियस आइडियाज बा ताको प्रमोट करबा ये सब काम ए माने करथले ये सब कारणरू आर्टिकल 26 अंडर रे ए मान को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बोली कुहा जाय so this is related to article 26 next हम देखिबा article 27 article 27 ये इंडियन इंडिया रो ट्रू नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म को प्रमोट करूची माने रियली सेक्युलरिज्म कोन आर्टिकल 27 एटी देखौची केमती ना हम समस्त जानिथिबे कि टैक्स देबा को पड़े गवर्नमेंट को टैक्स काहा को कोंती ना विदाउट एनी क्विड प्रो क्वो यार मीनिंग होची कि हमें कोनोसे रेसिप्रोकेशन गवर्नमेंट टू आशा न करी गवर्नमेंट को हमको टैक्स देबा को पड़िबो जेमते हमें बैंक रे टंका थौचंदी एंड वी एक्सपेक्ट यू विल गेट बैक आवर प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट एमते नाही तो एई जगह रे हमें कोन करबा ना गवर्नमेंट को टैक्स देबा को पडुची कोन पई ना ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हे पारे इनकम ऊपर टैक्स लागि पारे प्रॉपर्टी ऊपर लागि पारे सो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स अछि ये सब सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जहां हम इकोनॉमिक्स रे डिस्कस करबा सो आर्टिकल 27 कोची कोनोसी पर्टिकुलर रिलीजन रो डेवलपमेंट पई टैक्स निया जाय परिबो नाही प्रथमतः बा यदि याको मु अदर वे रे कहबी अलगा उपाय रे कहबी ताहले ये कहूची कि टैक्स देउथवा टंका बा टैक्स थ्रू रे कलेक्ट होतवा टंका को कोनोसी रिलीजियस एक्टिविटी रो डेवलपमेंट पई बा गोटे पर्टिकुलर रिलीजन रो डेवलपमेंट पई खर्च करा जाय परिबो नाही अर्थात ये सेक्युलरिज्म ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म को देखौची आर्टिकल 27 जेमति कि ये कहला मानि न तो हम समस्त टैक्स दउचंदी से टैक्स को नै कि सरकार कोन करियो कि ये टैक्स टंका रे गोटे राम मंदिर तयारी हो ये टैक्स टंका रे गोटे मस्जिद क्रिएट हो बा गोटे आउ किछि रिलीजियस डिनोमिनेशन पई आउ किछि गोल्डन टेंपल सेकंड गोल्डन टेंपल क्रिएट हो टैक्स टंका रे एटा हे पाइबोनी रादर जदी सेमति किछि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बा किछि रिलीजियस एक्टिविटी होबा को चाहूची देन दे कैन इंपोज सर्टेन फीस दे पारे फी और टैक्स भीतर डिफरेंस अछि हमें मंदिर को जाउछंती मंदिर एंट्री पई फीस दउछंती सेटा फीस रे जाउछि जदी हमें न जीवा ताले फीस दबानी बट टैक्स इज कंपलसरी जदि 5 लाख टंका रो हमर एनुअल इनकम अधिक अछि देन यू आर बाउंड टू पे द टैक्स हमें टैक्स दवा पई इंडिया रो लीगल सिस्टम अनुसार बा इनकम टैक्स एक्ट अनुसार हमें बाध्य टैक्स दवा पई किंतु फीस दवा पई हमें बाध्य नहंती जे पर्यंत हमें गोटे रिलीजियस संस्था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन रो किछि सर्विस पाउथिबा बा ताको यूटिलाइज करथिबा से जगह रे हमें दवा फीस यूटिलाइज न कले हमें फीस दबा नहीं तो 27 बेसिकली ये प्रोहिबिट करूची कहा को ना स्टेट को प्रोहिबिट करूची कि जो टैक्स टंका आसुची से टैक्स टंका को नेकी हमें यूटिलाइज करि परिबा नहीं कोनोसी प्रकार सेक्युलर कोनोसी प्रकार रिलीजियस एक्टिविटी रे बा फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन हम ताको यूज करि परिबानी सो ये इंडियन फॉर्म रो ट्रू नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म को डिनोट करूची नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देखिबा हमें आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Article 28 of the Indian Constitution. Article 28 religious instruction ऊपर कहूची को जगह रे ना educational institutions मान को ऊपर educational institution मान को ऊपर ये religious instruction कहूची religious instruction कौन ना instructions to be followed or the rituals to be practiced or particular ideas set of beliefs to be professed by a particular religion ताको हमें religious instruction बोली कहउचंती ये ठीक कहउची कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाई पारिबो नाही कोन को जगह रे ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मान करे तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान को चारि भाग रे डिवाइड करछ आर्टिकल 28 प्रथम तो ये कहउची इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट किछि इंस्टीट्यूशन जो माने कंप्लीटली स्टेट द्वारा मेंटेन होंती सेकंड टाइप रो इंस्टीट्यूशन व्हिच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट कोनोसी ट्रस्ट अंडर रे माने एस्टैब्लिश हेतिबे थर्ड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज हेतबा दरकार फोर्थ ये कहउची किछि इंस्टीट्यूशन रहि पारंती जो माने स्टेट रो एड रिसीव करछन दोज हु आर रिसीविंग द एड ऑफ द स्टेट टू किछि ग्रांट पाउछंती ये कहउची रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को इंस्टीट्यूशन दीटा इंस्टीट्यूशन ने ये कंप्लीटली अलाउ करछ प्रथमत जदी माने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड को जगह रे ना when the institution is wholly maintained by the state जदि state maintain करूची गोटे particular institution को at that point of time religious instruction सेठी allow नाही कोनोसी परिस्थिति रे religious instruction दिया जाई परिबो नाही सो religious instruction जदि गोटे institution अछि जे गोटे religion under रे बा गोटे trust under रे बा गोटे endowment under रे काम करूची at that point of time सेठी instruction दिया जाई परिबो religious instructions are allowed then
religious instruction जदि हमें देखिबा in the institutions which are recognized by the state आउ दुटा कैटेगरी रहले ना institutions recognized by the state and institutions which receive the aid from the state ये दुटा कैटेगरी रे voluntary basis रे religious instruction दिया जाई पारे voluntary basis रे दिया जाई पारे तो देखिला हमें जोटा completely wholly maintained by the state at that point of time religious instruction can never be given ए जगह religious instruction दिया जाई परिबो नहीं second institution administered by the state but established under the trust or endowment ए जगह रे religious instruction दिया जाई परिबो and rest दीटा रे instruction दिया जाई पारे बा instruction दिया जाई न पारे so this is all about article 28 of the Indian Constitution. So next देखिए हमें article 29 and 30 they are cultural and educational rights. They are cultural and educational rights. 25, 26, 27, 28 हमें discuss कर ले. They are religious rights. Religion one means right to the religion हमें ताको कहि परिबा. Then 29 and 30 they are cultural as well as educational rights. 29 कहूची any section of the citizens residing in any part of the India having a distinct language, having a distinct script or culture of their own, they have the right to conserve those characteristics. जदि कहूँ distinct language, distinct culture अच्छी, बा distinct set of belief अच्छी, किसी distinct culture, distinct script and distinct language अच्छी, कोटे particular section of the society रा समान को पकड़े संपूर्ण अधिकार अच्छी, ताकू save करी रखिया पाई, बा ताकू conserve करी रखिया पाई. ये अधिकार किए दोची ना article 29 दोची. तो ये देखो 29 ये भी माइनॉरिटी मान को ऊपर डिस्कशन करूची राइट टू माइनॉरिटीज को प्रकार माइनॉरिटी ना ये दीटा टाइप रो माइनॉरिटी ऊपर डिस्कशन कला काहे कि ना लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर तीनटा कथा ऊपर डिस्कस कला तो एठी दीटा टाइप रो माइनॉरिटी मान को सहित 29 इन्वॉल्व होची प्रथमतः रिलीजियस माइनॉरिटी एंड द्वितीयतः लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी मींस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो मानकर नंबर कम अछि ताको हम रिलीजियस माइनॉरिटी कहबा एंड इन द सेम वे जो मानकर on the basis of language जो मानकर नंबर कम अछि जो माने माइनॉरिटी ताको हमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोली कहि परिबा. ठीक अछि सो एठी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देथिले गोटे लैंडमार्क जजमेंट देथिले कि राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज दैट आल्सो इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट प्रोटेक्शन टू कंजर्व अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जदि हम कहबा ओडिया भाषा को कंजर्व करिया पई बा ओडिया साहित्य को कंजर्व करिया पई हम गोटे प्रोटेक्शन करूचंती बा गोटे एजिटेशन करूचंती बा हम चाहउचंती कि ओडिया लैंग्वेज रो किंतु डेवलपमेंट हो सेति में जदि हम किछ गोटे संघ करूचंती ताले ये इनवैलिड नुहे बा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नुहे हमें ओडिया लैंग्वेज को प्रोटेक्ट बिकॉज़ दिस इज अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज according to the 8th schedule of the Indian Constitution जेहेतु ये गोटे डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज याकू प्रोटेक्ट करिया पई याकू प्रिजर्व करिया पई सब प्रकार प्रमोशनल एक्टिविटीज बा सब प्रकार इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हमें संपूर्ण भाव रे करि परिबा. या सहित जदि हम देखिबा जेतोले देखितबे इलेक्शन पूर्व पॉलिटिकल स्पीच दिया जाए से जगह कौन कहा जाए ना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करिया पई गोटे पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करिया पई ताले से जो स्पीच दिया जायछि से भी करप्ट प्रैक्टिस नुहे अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 अनुसार जदि कोनोसी नेता इलेक्शन पूर्व गोटे पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिजर्व करिया पई बा स्टोर करिया पई कोनोसी प्रकार प्रॉमिस करछुंदी पॉलिटिकल प्रॉमिस देन दैट इज नॉट वायोलेटिव टू आरपीए एक्ट बा रिप्रेजेंटेशन टू पीपल एक्ट. देन the last article 30 of the Indian Constitution right of the minorities to establish and administer educational institutions एठी माइनॉरिटी मानन को संपूर्ण अधिकार दिया जायछि से माने तांकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करि परिबे प्लस मैनेज करि परिबे. सो ये कोन कहूची ना इट अगेन एठी माइनॉरिटी रो मीनिंग होते रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दीटा बेसिस रे एठी माइनॉरिटी को हमें डिफाइन करि परिबा. ये प्रथमतः कहूची कि ऑल द माइनॉरिटीज दे मे बी लिंग्विस्टिक और religious minorities they have the right to establish and to administer their educational institutions of their own choice so माने निजो चॉइस रो educational institution को administer करि परिबे बा establish करि परिबे. द्वितीयतः the compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority educational institution shall not restrict the right guaranteed to them. तो एठी ये कोन कहूची ना समानकर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कशन करूची बा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऊपर ये कहूची कि जो राइट्स दिया जायछि ये राइट रो अगेंस्ट ये जीव नाही. सो राइट ए जो इंस्टीट्यूशन मान को ऊपर हम डिस्कशन कले
right under article 30 under जो different institution मान को under रे institution मान को ऊपर हमें discuss कले ये basically तीन प्रकार institution ही थांती प्रथमतः institutions that seek recognition as well as aid from the state जो माने state through recognition पाइबे second institutions that seek only recognition from the state and not the aid एमाने कोनोसी aid पाइबेनी खाली recognition state recognize करिवो कि हां ये गोटे institution educational institution which is being administered and established by the minorities केवल recognition दरकार third जो मान को पाखा recognition ना थिवो ना से माने किछि state aid पाउथिबे कि तीन टाइप रो institution ऊपर ये डिस्कस करूछि so this is related to article 30 of the Indian Constitution. So आमे ए पर्यंत आर्टिकल 30 पर्यंत फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कले एंड rest of the articles the most important article जोटा हमर आर्टिकल 32 it discusses about different type of writs याको मु डिस्कस करबी इन द अपकमिंग क्लास नेक्स्ट सेशन में आमे डिस्कस करबा नेक्स्ट सेशन चेक करंतु YouTube रे ये अवेलेबल अछि एंड यू आर वाचिंग ऑन एकेडमी OPSC यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण देखि परिबे यू कैन आल्सो जॉइन टू Unacademy Plus by using the referral code EGOS so that you will be getting 10% discount upon your course fees यदि आज डिस्कशन ऊपर कहार किछि डाउट आसे देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चंस Unacademy Plus रे I have completed Indian Polity and Constitution including the governance part for OPSC prelims as well as mains examination. Apart from that, economics and social development, geography, internal security papers has also been covered under Unacademy Plus. There are many educators who will guide you and who will help you throughout the preparation for OPSC examination. केवल OS एग्जाम में ओडिशा गवर्नमेंट प्रत्येक एग्जाम पई आपण प्रिपेयर ही परिबे Unacademy Plus को सब्सक्राइब करी so subscribe to Unacademy Plus use the referral code EGOS so that you will be getting 10% discount upon your subscription amount. So thank you everyone, see you in the next class, have a good day.